welcome all of you. And on the today webinar, Manoj Goyal ji is with us. This is my fortune to introduce him. Manoj Kumar Goyal is a fellow member of Chartered Accountants of India. He is a professional with post-qualification experience of more than 2 decades across multifarious industry spectrum. Manoj is currently working as a senior partner with Messrs. RHMS and Company, Chartered Accountant. He is an excellent communicator with demonstrated capabilities in negotiating with various authorities, professionals, and clients for securing favorable judgments, deals, sanctions, and exemptions. Manoj ji is a skilled trainer and speaker with an aptitude of attracting the audience for hours. He has been a regular visiting faculty with various organizations such as Office of the CAG of and Study Circle of CI, serving various reputed Indian. He is now completely devoted himself into the field of GST. Manoj ji has also authored handful of articles and books on different topics. Manoj ji has authored different books on GST in the series called GST Unlocked, approved on direct ICI. He also accredited GST and and narcotics. वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है. Convener of Transcendent CP Study Circle of SI CIRC of ICI. This is the brief profile of our Manoj Goyal ji, today's star speaker. With this, I request Manoj ji, please carry on. And our Sunil Dhamija ji also joined us. Raman Khatuwala ji is also. Jagdish Kohli sahab is also. Manoj ji, sir, over to you. So, sir, as we decided, now we will take up only question answers, or we should stick to the topic? I think question answer is much better because इतने संख्या में ना सर टॉपिक बाकी आप जो as you like sir. नहीं, I am okay, sir. We can have a open house and we can start discussing questions. I think it will make more sense. Then you will have to open all the participants for asking questions. I think all of them have been muted. No, they can write, or if they want to ask, they may raise the hand. Yes. ठीक है सर, तो question answers करते हैं सर. हाँ, question answer is better. जी सर. Hello. I request all the participants, if there is any question, please raise the hand or write in the chat box. अरुण चांडक जी ने अभी हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं सर. सर वैसे बहुत सारे लोगों के ना कमेंट इसमें आ रहे हैं कि वी शुड स्टिक टू द टॉपिक. सर फिर कैरी ऑन सर. तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, देन जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे सर. राइट सर प्लीज. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर सभी के साथ. जी सर. स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करना पड़ेगा सर आपको. नहीं वो मेरे यहाँ से तो इनेबल है सर. ये जो नीचे ना ग्रीन वाला शेयर, उसमें आप करिए सर. हाँ, इसमें आ रहा है सर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. नहीं सर, मेरे तो मैं कहाँ से करूँ सर, मेरे को तो आता भी नहीं इतना. ये सर उसमें जो राजेश सर जो नीचे ग्रीन बटन बना है ना सर, हाँ, साइड पे एक एरो बना है, उसको आप राइट क्लिक करेंगे ना सर, तो उसमें मल्टीपल वो आ रहा होगा, मल्टीपल आ रहा है, उसको आप टिक कर दीजिए बस. किस पे टिक करूँ भाई साहब मैं? वो जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना सर, ग्रीन कलर का जो बटन है, उसके राइट साइड पे एक एरो बना रहा है, उसको आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे. जो सेकंड वाला ऑप्शन है मल्टीपल वाला, उसको आप टिक कर दीजिए, उसके ऊपर माउस से क्लिक कर दीजिए, वो टिक हो जाएगा. नहीं, मैं तो अपने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है. अच्छा, मोबाइल से किया हुआ है तो उसमें नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सर, आई थिंक. नहीं, कोई उसमें तो सारे खुल गए, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, सारे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स. एक काम करता हूँ मनोज जी, मैं आपको ना को होस्ट बना देता हूँ. यस, ये भी एक ऑप्शन है सर. जी मनोज जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप फिर कर सकते हैं आप.
Now, Manuji, you are co-host, sir. Okay, sir. Good. Started. Yes, sir. So my screen is now visible, sir. Agil sir, yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Ji. So, Rajesh sir, at the outset, thank you very much for giving me this opportunity, and I'm lucky enough to be here for past few times as well. So this is, I think, for the first time that we are connecting on a webinar. Previously, all the occasions I was physically present in the seminars with Karol Bagh Study Circle. So it's really an honor and a nice opportunity to interact with the members of the study circle through this webinar. So as we had discussed, the topic for the day will be the inspection, search, seizure and arrest. So जैसा राजेश जी ने कहा कि participants थोड़े कम हैं, but at the same time I think the spirits are very high, so that is what is more important rather than the number of participants. तो जितने भी लोग हैं उनके साथ हम कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को जितना अच्छे से हो सके डेलिब्रेट करें, और प्लीज क्वेश्चन आंसर्स इन बिटवीन भी हम लोग करते रहेंगे. आप लोग हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में अपना कोई भी कमेंट लिख दीजिए. सो वी विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल द पॉइंट्स कॉन्करेंटली. सो आज का जो टॉपिक है सर वो CGST एक्ट में चैप्टर नंबर 14 में डिस्क्राइब्ड है. Chapter number 14 is about inspection, search, seizure and arrest. Section 67 से लेके और section 72 तक 6 sections हैं जो govern करती हैं इस पूरे provision को. सबसे important distinction जो मैं highlight करना चाहता हूँ वो ये है कि inspection या search and seizure के provisions 2 sections में दिए हुए हैं. Section 67 है और 68 है. 68 जो है वो जैसा आपकी स्क्रीन पे भी इन सेक्शंस का मैंने जिस्ट लिखा हुआ है, तो जो सेक्शन 68 है दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट. तो मान लीजिए ई-वे बिल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सब को प्रोवाइड किया है 68 में. और उसके अलावा जितने भी स्टैटिक प्रेमिसेस हैं, जो गुड्स अंडर मूवमेंट के अलावा जितने भी आपके यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इवन वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन्स हैं, आपके ऑफिस प्लेसेस हैं या इवन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस भी हैं, ये सब को इंस्पेक्ट करने की या उसमें पड़े हुए सामान को सर्च और सीज करने की जो पावर्स हैं वो सेक्शन 67 से आती है. 69 सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक सेक्शन है जो पावर टू अरेस्ट को डिफाइन करता है कि किन किन सिचुएशंस में किसी को अरेस्ट किया जा सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट. देन 70, 71 एंड 72 जो है वो एक तरीके से सप्लीमेंट्री सेक्शंस हैं. बेसिकली ये जो 3 सेक्शन 67, 68 और 69 हैं, इन तीनों को सप्लीमेंट करते हैं ये आगे के 3 सेक्शन. 70 सेक्शन नंबर 70 जो है वो पावर टू समन एनी पर्सन. 71 है एक्सेस टू द बिजनेस प्रेमिसेस और 72 है ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर. सो ये 3 सेक्शंस जो हैं वो सेकेंडरी हैं. पहले 3 सेक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये 6 के 6 सेक्शंस को बैकअप करता है रूल नंबर 138 जो कि ई-वे बिल का रूल है. 138 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेक्शन 68. उसके अलावा जो रूल्स 67 को सब्सटैंशिएट करते हैं वो है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर का रूल नंबर 139. 140 में बॉन्ड एंड सिक्योरिटी फॉर रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स एंड 141 में प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ सीज्ड गुड्स. सो सेक्शन 67, 68, 69 ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. उसके बाद रूल नंबर 138, 139, 140 एंड 141 ये 4 रूल्स हैं जो इनको सब्सटैंशिएट करते हैं. और जैसा कि मैंने कहा सेक्शन नंबर 70, 71 और 72 ये 3 सेक्शन जो है वो एक तरीके से एंसिलरी या सपोर्टिंग सेक्शंस हैं 67, 68 और 69 के लिए. तो ये आज का हमारा पूरा एजेंडा है जिसपे थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आज टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड रहेगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे जितना ज्यादा डिटेल में बात हो सके. तो ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है चैप्टर 14 की. सेक्शन 67 2 हिस्सों में बटा हुआ है. 67(1) है, 67(2) है, फिर उसके बाद सेक्शन 68 है और बाकी के एंसिलरी सेक्शंस हैं. 69 जैसे कि मैंने कहा पूरा बैकबोन है, ये अरेस्ट के प्रोविजंस की बात करता है.
तो इन सारे सेक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि इनमें क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं। 67 के जैसा हमने बात की, दो सबसेक्शन है, 67(1) और 2। पूरा जो सेक्शन है ये इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, ये तीन चीजों के बारे में बात करता है, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। और तीनों एक तरीके से लैडर वाइज हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन की बारी आती है, दूसरे नंबर पे सर्च की बारी आती है, और तीसरे नंबर पे अगर जरूरत पड़े तो सीजर की बारी आती है। तो 67(1) टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए जो ऑथराइजेशन है वो जॉइंट कमिश्नर, जेसी के नीचे के लेवल के ऑफिसर के पास नहीं हो सकता। तो जॉइंट कमिश्नर या अबव रैंक ऑफिसर, इफ ही हैज रीजंस टू बिलीव कि देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो सर्टेन एक्टिविटीज हैं उसको हम लेटर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन में देखते हैं, अगर वो सर्टेन पार्ट एक्टिविटीज कहीं पे भी सस्पेक्टेड हैं तो उस केस में आपके पास इंस्पेक्शन की पावर होती है, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो कहां कहां पे ये इंस्पेक्शन हो सकता है? Any place of business of the taxable person, place of business of the person engaged in the business of transportation, place of business of the owner of or operator of the warehouse or godown, सबसे आखिर में any other place। तो तीन जगहों को इन्होंने स्पेसिफाई किया है। पहले किसी भी टैक्सेबल पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा किसी भी ट्रांसपोर्टर का प्लेस ऑफ बिजनेस, और तीसरा किसी भी गोडाउन ओनर का प्लेस ऑफ बिजनेस, और चौथा कोई भी जगह। इन सब में इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइजेशन हो सकता है। ऑथराइज करने के लिए जो भी ऑफिसर ऑथराइज करेगा, जो जेसी या अबव रैंक का ऑफिसर होगा, वो एक फॉर्म साइन करके देगा जिसका नाम है INS 01, यानी कि इंस्पेक्शन 01। ये रूल 139 में लिखा हुआ है। ये इसका फॉर्मेट भी मैंने प्रेजेंटेशन के लास्ट में लगाया है, अगर टाइम नहीं भी मिलेगा तो ये फॉर्मेट जरूर देखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके अगेंस्ट कोई भी इंस्पेक्शन का, आपके किसी भी एसएससी या क्लाइंट के अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू होता है तो उसमें क्या लैंग्वेज लिखी होती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना कि उसका ऑथराइजेशन प्रॉपर है या नहीं है। अब देखते हैं 67(1) में हमने कहा कि कहां कहां इंस्पेक्शन हो सकती है। आपके बिजनेस प्रेमिसेस पे, खुद के बिजनेस प्रेमिसेस पे हो सकती है, आपके ट्रांसपोर्टर के बिजनेस प्रेमिसेस पे हो सकती है, वेयर हाउस ऑनर के बिजनेस प्रेमिसेस पे हो सकती है, या किसी और जगह पे भी हो सकती है। बट क्यों हो सकती है, रीजंस क्या हो सकते हैं इंस्पेक्शन होने के? सबसे पहले है कि अगर ऑफिसर जो कि जेसी अबव रैंक का है उसके पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। क्या रीजंस टू बिलीव होने चाहिए? इनमें से कुछ भी हो सकता है। पहली बात, सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मान लीजिए ऑफिसर को ये बिलीव है कि किसी एसएससी ने कोई ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को सप्रेस किया है, तो ये इंस्पेक्शन हो सकता है। सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, अगर जो स्टॉक आपके पास एक्चुअल में फिजिकली अवेलेबल है उसको आपने सप्रेस किया है, ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, इस एक्ट के किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को आपने वायलेट किया है, कॉन्ट्रावीन किया है विद द इंटेंशन टू अवॉइड टू इवेड टैक्स। ये जरूरी है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में तो बहुत बारी कॉन्ट्रावेंशन ऐसा भी होता है जो कि टैक्स इवेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। जो भी कॉन्ट्रावेंशन आप करेंगे दैट हैज टू बी प्रूव्ड कि ये विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स हुआ है। और सबसे आखिरी है केप्ट गुड्स व्हिच हैव एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स और इन सच अ मैनर एज लाइकली टू कॉज इवेजन। फॉर एग्जांपल, आपका वेयरहाउस है या आप ट्रांसपोर्टर हैं और आपको मालूम है कि जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या जो गुड्स आपने वेयरहाउस में रखे हुए हैं ये इनके ऊपर टैक्स का ड्यू डिस्चार्ज नहीं हुआ है, उस केस में भी इंस्पेक्शन हो सकती है। तो ये 5 कंडीशंस में से कुछ भी अगर हो, ऐसा कोई भी रीजन है, तो आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स हो सकते हैं। और ये ऑर्डर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 से एमिनेट होते हैं। फिर बात करते हैं 67(2) की। 67(2) एक फर्दर स्टेप होता है। अगर इंस्पेक्शन के दौरान या अदरवाइज ऑफिसर को ये रीजंस टू बिलीव हैं कि आपने कोई गुड्स या कोई भी सामान जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, आपने कुछ भी एक जगह पे जानबूझ के सीक्रेट करके रखे हुए हैं, तो उनको सीज करने का, उनको सर्च करने का भी ऑर्डर मिल सकता है। ये ऑर्डर भी INS 01 में ही आता है। जो फॉर्म है वो दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन लैंग्वेज जो है इधर और करके होती है। अब जब आपके पास कोई ऑफिसर आए
तो हमें ये देखना जरूरी है कि INS 01 में उसके पास पावर क्या है। INS 01 में दोनों चीजें होती हैं, इंस्पेक्शन भी होता है और सर्च एंड सीजर भी होता है। अगर आपके पास इंस्पेक्शन के लिए कोई लेके आया है ऑर्डर, तो वो आपके यहाँ गुड्स का सर्च नहीं कर सकता और सीज तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके यहाँ इंस्पेक्शन कर सकता है। थोड़ा डिटेल में ये भी देखेंगे कि इंस्पेक्शन और सर्च एंड सीजर में बेसिकली फर्क क्या होता है। तो यहाँ 67(2) क्या कहता है, इफ द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर either pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or otherwise। मतलब हो सकता है कि एक ऑफिसर आपके पास 67(1) में इंस्पेक्शन करने आए और इंस्पेक्शन के दौरान उसको लगे कि ऐसा कुछ हुआ है कि गुड्स आपने सीक्रेट करके रखी हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट सीक्रेट करके रखे हुए हैं और सर्च करना जरूरी है, तो वो ऑन द स्पॉट परमिशन भी ले सकता है और या ये परमिशन सेपरेटली भी आ सकती है। तो अगर ऐसा लगता है कि any goods are liable to confiscation or any documents or books or things useful for or relevant to any proceedings under this act are secreted in any other place, the proper officer may authorize in writing any other officer of the central tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things। तो या तो वो खुद ये कर सकता है जो जॉइंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर है, और या वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है इसके लिए। अगेन रूल नंबर 139(1) और INS 01 के थ्रू ये पावर्स दी जाती हैं। If any goods, documents, books or things are liable for seizure as above, the proper officer or an authorized officer shall make an order of seizure in the form GST INS 02। तो अगर मान लीजिए इंस्पेक्शन या सर्च के दौरान कोई गुड्स को सीज करना पड़ता है, तो सीजर के लिए INS 02 फॉर्म में ऑर्डर इशू होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं जहां गुड्स सीज तो करनी है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गुड्स को सीज कर पाना, तो उस केस में सीज किए बिना एक ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन भी इशू हो सकता है। तो हम कहते हैं कि अगर सीजर प्रैक्टिकल नहीं है किसी सिचुएशन में, तो द प्रॉपर ऑफिसर में सर्व ऑन द ऑनर और कस्टोडियन ऑफ द गुड्स एन ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इन फॉर्म GST INS 03। तो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सीजर ओनली, जहां पे कि जो SSC है या जिसके सुपरविजन में वो गुड्स पड़े हुए हैं, उसको एक आदेश मिलेगा कि आप इन गुड्स को ना तो यूज कर सकते हो, ना ही यहां से हटा सकते हो, ना ही इनको बेच सकते हो, किसी टाइप का कोई एक्शन आप इन गुड्स के ऊपर नहीं ले सकते। तो प्रैक्टिकली अगर सीजर पॉसिबल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन भी इशू हो सकता है। सो can be retained as long as necessary. The documents or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for their examination and for an inquiry or proceedings under this act। तो ये जरूरी है ऑफिसर के लिए कि वो गुड्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी सीज कर रहा है वो तभी तक अपने पास रख सकता है जब तक कि वो जरूरी है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। Further, the proper officer may entrust upon the owner or the custodian of goods from whose custody such goods or things are seized the custody of such goods or things for safe upkeep, and the said provisions shall not remove, part with or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of such officer। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास गुड्स को ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन के अंडर में रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इन गुड्स को कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे या कहीं मूव नहीं करेंगे किसी भी पर्पस से। अब ये है कि जो गुड्स आपकी सीज हुई हैं वो वापस कैसे मिलेंगी। तो सीज थिंग्स नॉट रिलाइड अपॉन टू बी रिटर्न विद इन 30 days ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी अफसर ने अगर गुड्स को सीज करके अपने पास रख लिया है तो वो परमानेंटली रख लिया, उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो वो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या गुड्स जो कि आपके आगे के प्रोसेस के लिए जरूरी हैं, जो जिसके ऊपर आपने रिलाई किया है। तो ऑफिसर ने जब सारे डॉक्यूमेंट्स को सीज किया या गुड्स को सीज किया तो उसके बाद वो एक नोटिस भेजेगा आपको। उस नोटिस में जितने चीजों के ऊपर उसने रिलाई किया है वो चीजें तो वो रिटेन कर सकता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट जिन डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन या गुड्स के ऊपर उसने रिलाई नहीं किया है पूरे नोटिस में, वो सारी की सारी उसको नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर वापस करनी होगी, उसको वो रिटेन नहीं कर सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि सपोज कीजिए आपके दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सीज कर दिया, लेकिन जब आपको नोटिस भेजा गया तो उसमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स इररिलेवेंट थे, नोटिस में कहीं उनका जिक्र नहीं है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरीली वापस मिलने चाहिए, जरूरी है वो।
अब ऑफिसर जो जाता है सर्च और सीजर के लिए, उसके पास क्या क्या पावर्स होती है? उसके पास पावर टू सील और ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी प्रेमिसेस। अगर मान लीजिए 67(2) का ऑर्डर है, तो आप उसके पास ये पावर होती है कि अगर आप उसको अलमारी खोल के नहीं देंगे, गोडाउन खोल के नहीं देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स या रेस्पेक्टिव प्लेस का एंट्रेंस एक्सेस नहीं देंगे, तो वो कुछ भी अलमारी खोल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बॉक्स, रिसेप्टिकल और एनी अदर, जहां पे भी गुड्स रखे हुए हैं, अकाउंट्स रखे हुए हैं, रजिस्टर्स रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उन सब को वो जबरदस्ती ताला तोड़ के भी उसमें एंट्री कर सकते हैं अगर 67(2) का नोटिस है। तो जरूरी है कि आपको कोऑपरेट करना है, और ऐसे सिचुएशन में जो भी लोकेशंस हैं अगर वो एक्सेस मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 67(2) का नोटिस होना चाहिए। 67(1) में ये पावर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ इंस्पेक्शन के ही पावर्स होते हैं। उसमें तो इनफैक्ट सर्च के पावर भी नहीं होते। आप जो दिखाएंगे वही वो देखेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स पे आप एक्सेस देंगे, जहां कंप्यूटर पे बिठाएंगे, जो गुड्स आप दिखाएंगे, वही सब इंस्पेक्शन हो सकता है। The person shall be entitled to make copies or take extracts therefrom in the presence of an authorized officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf. तो अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट सीज हो रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स आपसे सीज हो रही है, तो उसकी अगर आपको कॉपीज चाहिए तो ऑफिसर आपको कॉपीज दे सकता है, लेकिन ये डिसाइड वो करेगा कि वो यहीं पे देगा या आपको उसके ऑफिस जाके लेना पड़ेगी, ये बात आपको ऑफिसर बताएगा। लेकिन आप चाहें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आपकी सीज हुई है उसकी कॉपीज आप लेने के लिए हकदार होते हैं। अब आता है कि एक ऑप्शन होता है प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। अगर मान लीजिए आपकी कोई गुड्स जो हैं वो सीज हुई हैं, तो उनको आप कैसे रिलीज करवा सकते हैं? The goods so seized shall be released on a provisional basis upon execution of a bond and furnishing of a security in such manner and such quantum respectively as may be prescribed. तो अगर आप दो चीजें देनी है, अगर आपको गुड्स रिलीज कराने हैं प्रोविजनली, मान लीजिए आपका सामान इंपॉर्टेंट है, आपको बेचना है या जो भी उसके साथ करना है, तो उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आपको बॉन्ड फर्निश करना होगा और दूसरा आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा। तो वो डिस्क्राइब्ड है रूल नंबर 140 में कि कितने का बॉन्ड देना है और कितनी आपको सिक्योरिटी अमाउंट देनी है। सो रूल 140 कहते हैं द गुड्स सीज्ड में बी रिलीज्ड प्रोविजनली ऑन फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड इन फॉर्म नंबर GST INS 04 फॉर वैल्यू ऑफ द गुड्स। जितने की गुड्स हैं उनके इक्विवेलेंट एक बॉन्ड भरना है। मान लीजिए आपकी गुड्स जो है वो 10 लाख रुपए की वैल्यू की हैं, तो 10 लाख रुपए के इक्वल आपको एक बॉन्ड देना है। But in addition to that, security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of tax, interest and penalty in respect of such goods. तो जितना भी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बनता है उसकी एक बैंक गारंटी देनी है। तो मान लीजिए आपका 12% का आइटम है, 12% का टैक्स हो गया, अगर उसके ऊपर कोई एप्लीकेबल इंटरेस्ट बनता है तो वो भी, और पेनल्टी बनती है तो वो भी, उन सब अमाउंट्स को जोड़ के जो टोटल वैल्यू बनेगी उतने की आपको एक बैंक गारंटी देनी है, तब जाके आपकी गुड्स जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज हो सकती हैं। In case the person to whom goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine if any payable in respect of such goods. तो अगर आपने टाइमली गुड्स को रिप्रोड्यूस नहीं किया जैसा ऑफिसर ने बोला, तो आपकी सिक्योरिटी को इनकैश किया जा सकता है। दो बातें हैं, एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि आपकी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन जो भी एप्लीकेबल होगा उसके बराबर होगी, और दूसरी चीज एक बॉन्ड भरनी होगी ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ सीज्ड गुड्स। सीज्ड गुड्स आपको वापस कब मिलेंगे? एक तो हमने बात की प्रोविजनल बेसिस पे गुड्स को वापस लेने की, रिलीज करवाने की। अदरवाइज गुड्स रिटर्न कब होंगी? Where any goods are seized and no notice in respect thereof is given within 6 months of the seizure of goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized. तो मैक्सिमम 6 महीने का पीरियड है। अगर 6 महीने के अंदर आपको नोटिस नहीं दिया गया तो आपको गुड्स वापस मिल जाएंगी, लेकिन ये फर्दर एक्सटेंडेबल होता है ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। दिस पीरियड इज फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 6 months. सो इसके बाद 67(8) में बात करता है डिस्पोजल ऑफ गुड्स की। तो ये कहता है कि अगर कोई गुड्स ऐसी हैं जो पेरिशेबल हैं, हैजर्डस हैं, उनकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रहा है या उनको स्टोर करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर को पावर मिल जाती है कि वो चाहे तो इन गुड्स को पहले ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन
डिस्पोज कराने से पहले उसको एसएससी से परमिशन लेनी होगी। चाहे तो एसएससी खुद उन गुड्स को रिलीज करवा सकता है। अगर हैजर्डस नेचर की, पेरिशेबल नेचर की, डेप्रिशिएबल नेचर की या ऐसी आइटम्स है जिनको स्टोर कर पाना मुश्किल है, so goods may be released if the taxable person pays an amount equal to the market price of such goods or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower. तो अगर आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स लोअर है तो उतने पैसे दे दीजिए, और अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का फिगर लोअर है तो उतने पैसे दे दीजिए। आपको जो पेरिशेबल, हैजर्डस या डेप्रिशिएबल नेचर के आइटम्स हैं उनका रिलीज पॉसिबल है, मिल जाएगा। तो इसमें एक INS 05 नाम का फॉर्म होता है जिसपे ये ऑर्डर आपको रिलीज होगा। Where the person fails to pay the amount, the proper officer may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty or other payable amount in respect of such goods or things. तो अगर मान लीजिए आपने ऐसी गुड्स को नहीं छुड़वाया तो प्रॉपर ऑफिसर इनको डिस्पोज कर सकता है और उससे जो पैसा मिलेगा उसको ये लायबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये प्रोसीजरल सेक्शन है। ऑफिसर को इन्वेंट्री के डिटेल्स बनाने होंगे, जो भी आइटम वो सीज कर रहा है उसकी डिटेल्ड क्रोनोलॉजिकल आइटम वाइज डिटेल बनानी पड़ेगी, वो रूल नंबर 139(5) में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 67(10) कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एप्लीकेबिलिटी होती है। प्रोविजंस ऑफ सच कोड रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर अप्लाई एंड पावर्स रिलेटेड टू मैजिस्ट्रेट टू बी पोजेस्ड बाय CGST SGST ऑफिसर्स। मेरे को पता है सर, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं, कैरी ऑन सर, अच्छा, प्लीज कैरी ऑन। okay, so next now is seizure of accounts, registers or documents 67(11) में है, और authentication of tax invoice और bill of supply 67(12) में है। briefly पढ़ते हैं इसको भी। where the proper officer has reason to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents produced before him and shall grant receipt of the same and shall retain the same for so long as may be necessary. ये वो सिचुएशन है जहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन या एसएससी को एविडेंस के लिए बुलाया जाता है या समन करके बुलाया जाता है और लगता है कि वो आदमी जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन या तो छुपा रहा है या टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर इंफॉर्मेशन को सीज किया जा सकता है और एक रसीद देके उसको भेजा जा सकता है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे वापस किए जाएंगे। The commissioner or an officer authorized may purchase any goods or services from the business premises of any taxable person. ये बेसिकली पुराने एक्ट्स में भी ऐसे ही होता था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो टैक्स रिप्रेजेंट करता है वो कोई भी सामान खरीद सकता है ये देखने के लिए कि जो एसएससी है उसने ठीक से टैक्स चार्ज कर रहा है या नहीं, टैक्स का कोई इवेजन तो नहीं हो रहा, और अगर वो जाके गुड्स को वापस रिटर्न करेगा तो उसको पूरे पैसे ऑफिसर को वापस करने पड़ेंगे एसएससी को। यही इस सेक्शन का प्रोविजन है। तो इसका मतलब कि जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके शॉप पे आके किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस पे आके कुछ खरीदेगा तो आपको उसको प्रॉपर इनवॉइस के साथ बेचना है, और वो अगर वही सामान आपको वापस कर देगा तो उसको बिना किसी रोक टोक के उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको। सो अब ब्रॉडली हम देख लेते हैं 67(1) और 2 का डिफरेंस क्या है। पहली बात, प्राइमरी पर्पस क्या है। फर्स्ट केस में वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई, स्टॉक इन हैंड, क्लेम ऑफ आईटीसी एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन, इनको वेरीफाई करने का है। जो 67(2) होता है वो अनअर्थिंग ऑफ गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन और सीक्रेटेड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। तो इसमें ऑलरेडी आपको पता होता है सीजर के केस में या सर्च के केस में कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं हुआ है, या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली प्लेस किया हुआ है, उसके लिए सीजर होगा या सर्च होगा। इंस्पेक्शन के लिए आप जनरली इंस्पेक्ट करते हैं कि स्टॉक चेक करने के लिए आईटीसी ठीक से क्लेम किया है कि नहीं, और कोई एक्ट के और प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन तो नहीं किया गया है। स्कोप ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्कोप इसका इंस्पेक्शन के केस में कम होता है और सर्च और सीजर के केस में कंपैरेटिवली ज्यादा वाइडर स्कोप होता है। पावर्स, फोर्सफुल एक्शन, सीलिंग और ब्रेक ओपन कैनॉट बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ इंस्पेक्शन। ऑन द अदर साइड सर्च एंड सीजर में पावर्स ज्यादा होती हैं, वहां पे अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जबरदस्ती एंट्री और सील तोड़ने जैसे एक्शंस हो सकते हैं। सीजर ऑफ गुड्स का 67(1) में सवाल नहीं उठता, 67(2) में ही सीजर हो सकती है। सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगेन
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज नहीं हो सकते 67(1) में, सिर्फ इंस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम 67 में हमने देख लिया कि कैसे इंस्पेक्शन होता है, कैसे सर्च होती है और सीजर कैसे होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं 68 की। 68 जैसा हमने बात किया था कि दिस इज बेसिकली सेक्शन which only talks about inspection of goods during movement। तो इसका एक लिमिटेड प्रोविजन है जो बात करता है कि किस सिचुएशन में आपकी गुड्स अगर ड्यूरिंग मूवमेंट है तो उनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ये सेक्शन कहती है कि द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड आल्सो टू कैरी विद हिम सच डिवाइसेस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये हमें मालूम है 68 से जो प्रोविजन आता है उसको सब्सटैंशिएट किया जाता है रूल 138 से, जो कि मेजरली ई वे बिल का रूल है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं वो इनवॉइस होती है और उसके अलावा ई वे बिल होता है। RFID डिवाइस के बारे में भी यहाँ पे प्रोविजंस में दिया हुआ है। So where any conveyance is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce these aforesaid documents and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow inspection of goods। रास्ते में अगर कभी आपकी गुड्स को रोका जाता है तो आप उनको ई वे बिल, इनवॉइस और आपकी गुड्स इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। 138 को हम स्किप करते हैं। ई वे बिल काफी बड़ा प्रोविजन है, ये 68 से लिंक्ड है। किसी दिन अलग से अगर हम ई वे बिल पे चर्चा करेंगे तो इन प्रोविजंस को देखेंगे। ब्रीफली मैंने इसमें पीपीटी में नोट किया हुआ है 138(1), उसके बाद में A, B, C और D, ये सारे के सारे रूल्स मेजरली ई वे बिल से कनेक्टेड हैं। तो आज के लिए हम इनको स्किप करते हैं और अगली और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि है पावर टू अरेस्ट। तो अभी तक हमने 67 और 68 में देखा इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। अब हम बात करते हैं पावर टू अरेस्ट की, और इसमें हम अच्छे 10-15 मिनट की टोटल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो कंटेंट है उसको हम स्किप कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्शन 69 मोर प्रिसाइसली। तो 69 क्या कहता है? वेयर द कमिश्नर, अभी एक बात नोटिस करने वाली है कि जब 67 हम पढ़ रहे थे तो उसमें जेसी एंड अबव ऑफिसर्स के पास पावर्स थे। यहाँ पे हम बात करते हैं कमिश्नर, वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, इंटरकनेक्टिंग सेक्शंस है, तो जब तक हम बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इसको नहीं समझेंगे तो कहीं कुछ स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा फोकस करके टाइम भी ज्यादा इसके ऊपर लगाना चाहता हूं। तो वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड any offense specified in clause A or clause B or clause C or clause D of subsection 1 of section 132। यहीं पे रुक जाते हैं। पहला लेग जो है इस सेक्शन का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो भी एक्शन आपने किया है एज एन एसएससी वो क्लॉज A, B, C, D ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में फॉल करना चाहिए। तो ये चार ही ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो आपको डायरेक्टली अरेस्ट के प्रोविजन से लिंक करा सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि हमें देखना है 132 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, B, C, D में क्या ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हैं या क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं जो आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। फर्दर वो कहता है विच इज पनिशेबल अंडर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 1। अब ये जो 132 सबसेक्शन 1 है काफी बड़ा है। 32 सबसेक्शन 1 में जब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑफेंसेस तो करीब 21 ऑफेंसेस हैं जो आपको 132(1) में बताए गए हैं। क्लॉज A, B, C, D, E, F, G, H से लेके काफी लंबे हैं। उसके बाद फर्दर वो कहता है कि सारे के सारे ऑफेंसेस जो A, B, C, D क्लॉज में फॉल करते हैं उनके लिए जेल नहीं हो सकती है। अगर वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 1 में पनिशेबल हैं, वहां भी पनिशमेंट 4 तरीके की होती है, क्लॉज 1, 2, 3, 4। तो 4 में से 2 ही क्लॉज अगर एप्लीकेबल होंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जाता। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, 132(1) के सिर्फ 4 क्लॉज में ऑफेंसेस दिए हैं, वही ऑफेंस आपको जेल पहुंचा सकते हैं। और दूसरा वो ऑफेंस भी तभी जेल पहुंचा सकते हैं जबकि आपका पनिशमेंट जो है वो क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में आ रहा हो।
अब इस सबको हम डिटेल में देखेंगे कि 132(1) में क्या है, ABCD में क्या है, और उसके क्लॉज 1 और 2 में क्या ऑफेंसेस हैं, क्या पेनल्टीज हैं, वो देखेंगे ताकि इस सेक्शन का पूरा रेलेवेंस हमें समझ में आ जाए। फर्दर वो कहता है कि अगर आपने 132 सबसेक्शन 2 का में भी अगर आपका ऑफेंस फॉल करता है तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ही मे बाय ऑर्डर ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन। तो 132(1) के ABCD 4 क्लॉजेस में अगर आपका ऑफेंस पनिशेबल है क्लॉज नंबर 1 और 2 में तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर 132 सबसेक्शन 2 में अगर आप पनिशेबल हो तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। फर्दर, where a person is arrested under subsection 1 for an offense specified under subsection 5 of 132, the officer authorized to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a magistrate within 24 hours. इसको पार्क कर लीजिए। जो सेकंड लेग इसका है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अरेस्ट के प्रोविजंस हैं वो दो तरीके के हैं, एक बेलेबल अरेस्ट प्रोविजन होते हैं और एक नॉन बेलेबल अरेस्ट प्रोविजन होते हैं। जो नॉन बेलेबल हैं वो तो ऑफिसर इंचार्ज खुद ही बेल देता है। जो नॉन बेलेबल होते हैं उस केस में क्योंकि बेल पॉसिबल नहीं होती है तो विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट आपको मैजिस्ट्रेट के पास में उस आदमी को प्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से नॉन बेलेबल हैं। तो इस सारे बैकग्राउंड को जो सेक्शन 69 में लिखा हुआ है कनेक्ट करना पड़ेगा 132 के साथ, क्योंकि 69 में आपको बताता है कि अरेस्ट कब हो सकती है, बट जो भी ऑफेंसेस हैं और उनकी जो पनिशमेंट है जिसके बेसिस पे अरेस्ट हो सकता है वो सब 132 में लिखे हुए हैं। तो 132 में हम उल्टा शुरू करते हैं। सबसे पहले 132 सबसेक्शन 5 देखते हैं। ये क्या कहता है? The offenses specified in clause A or B or C or D of subsection 1 and punishable under clause 1 of that subsection shall be cognizable and non-bailable. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 132(5) में पढ़ें और ऊपर 69 की जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसको पढ़ें तो इसमें क्या फर्क है? माइन्यूट सा फर्क है सर। जो ऑफेंस है वो 132(5) में भी वो बोलता है कि क्लॉज ABCD ऑफ 132(1) के होने चाहिए, सेम ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन जो पनिशमेंट है वो ऊपर लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 1 और 2 दोनों में से कहीं भी हो सकती है, लेकिन 132(5) में सिर्फ क्लॉज 1 की बात करता है। अब इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं कि क्लॉज 1 में क्या है और क्लॉज 2 में क्या है। इसका मतलब क्लॉज 1 जो है वो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, क्लॉज 2 जो है वो बेलेबल ऑफेंस होता है। इतना ही फर्क है दोनों सिचुएशंस में। अब जितना भी प्रोविजन हमने अभी तक नोट किया इसको यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं, उन सिचुएशंस को इस स्लाइड पे कैप्चर किया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट आपकी अरेस्ट पॉसिबल है। 4 ऑफेंसेस होते हैं 132 सबसेक्शन 1 में ABCD। ए में कहता है सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स। अगर आपने किसी सिचुएशन में ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दिए और इनवॉइस दिया ही नहीं, मतलब आपका इंटेंशन है कि आप टैक्स इवेड करना चाहते हो, 2 नंबर में कच्चे में कैश में आपने बिल इशू गुड्स बेच दिए लेकिन बिल इशू नहीं किया, तो ये ऑफेंस आपका पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें अरेस्ट भी हो सकता है। दूसरा है इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑफ टैक्स। उल्टी सिचुएशन, यहाँ पे आपने गुड्स नहीं दिए लेकिन इनवॉइस दे दिया। पहली सिचुएशन में इनवॉइस नहीं दिया लेकिन गुड्स दे दिए, दूसरी सिचुएशन में गुड्स नहीं दिए लेकिन इनवॉइस दे दिया। तीसरी सिचुएशन अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवॉइस और बिल रेफर्ड टू इन क्लॉज बी। और रेड कलर में रेड फॉन्ट में जो लिखा हुआ है ये अमेंडमेंट है, ये कहता है फ्रॉडुलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल ऑल्सो। लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो जो पहले प्रोविजन लिखा हुआ था इसमें लोगों ने ये कह के बचना शुरू कर दिया कि साहब 3B में हमने जो इनपुट लिया है वो उन इनवॉइसेस का तो है ही नहीं जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आपका रॉन्ग अवेलमेंट है, क्योंकि 3B में आपको इनवॉइस की डिटेल तो देनी नहीं होती है, 3B में आप सिर्फ अमाउंट भर देते हो। तो बहुत सारे लोगों ने ये प्ली लिया कि जो इनपुट हमने लिया है ये उन इनवॉइसेस का नहीं है जो आप कह रहे हो कि गलत इशू हुए हैं या वो क्लॉज बी के इनवॉइसेस हैं। तो इसलिए उन्होंने अब चेंज किया कि अगर फ्रॉडुलेंटली आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट इनवॉइस और बिल भी लिया है तो भी आप इस क्लॉज में फॉल कर जाएंगे। चौथा और आखिरी क्लॉज है
collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months. ये इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट वाले जो 3 वर्ड्स हैं इसको नोट कर लीजिए, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. 5 करोड़ रुपए की जब हम बात करेंगे, जो 132(1) के क्लॉज 1 और 2 जिसपे अभी हम आने वाले हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ वैल्यू का ही डिफरेंस है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं किया, उसकी कितनी वैल्यू है इस पे डिपेंड करता है कि एसएससी का अरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अरेस्ट तभी हो सकता है जब पेमेंट ड्यू डेट से 3 महीने तक नहीं हुई है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1 करोड़ रुपया हर महीने आ जाती है. जनवरी से लेके और मई तक 5 महीने में आपने 1-1 करोड़ रुपया जमा कराना था. जनवरी की रिटर्न 20 फरवरी को जमा होनी थी और मई की रिटर्न 20 जून को जमा होनी थी. तो 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी इकट्ठी हो गई, लेकिन 20 जून तक आपने 1 रुपया भी जमा नहीं किया. तो हिसाब से देखा जाए तो आपने सरकार का 5 करोड़ रुपया कलेक्ट कर रखा है लेकिन जमा नहीं कराया हुआ. लेकिन इस प्रोविजन के हिसाब से आपका अरेस्ट जो है वो 20 जून के बाद कम से कम 3 महीने और बीतने चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता. कई बार टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये 3 महीने का एक लेवरेज मिलता है हमें, तो उतने ही अमाउंट को काउंट किया जा सकता है जितना अमाउंट 3 महीने से भी ज्यादा पुराना हो चुका है. तो जनवरी वाला अगर मान लीजिए 30 जून को आपके यहाँ ऑफिसर आया, तो उसके लिए सिर्फ वही अमाउंट रेलेवेंट है जो 3 महीने से भी ज्यादा पुराना ड्यू हो चुका है. उसके बियॉन्ड वाला जो अमाउंट है उसके लिए आपको कंसिडरेशन नहीं होगा. तो ये 4 क्लॉजेस हैं, क्विकली रिपीट करते हैं. आपने गुड्स बेच दिए, इनवॉइस नहीं दिया. आपने इनवॉइस दे दिया, गुड्स या सर्विसेज नहीं दी. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने या तो जो गलत बिल लिए हुए हैं उनका इनपुट यूज कर लिया या बिना किसी बिल के इनपुट यूज कर लिया, और या फिर आपने सरकार का टैक्स कलेक्ट किया है लेकिन जमा नहीं किया. ये चारों सिचुएशंस जो हैं आपके, वो ऑफेंसेस हैं जो आपको जेल में ले जा सकते हैं. लेकिन वो ऑफेंसेस हर हालत में जेल नहीं ले जा सकते. मान लीजिए आप 5,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट करें और वो जमा ना करा पाए, 6 महीने बीत जाएं, 1 साल बीत जाए, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. अरेस्ट करने के लिए पनिशमेंट का क्लॉज नंबर 1 और 2 ऑफ सेक्शन 132(1) में फॉल करना जरूरी है. तो यहाँ वो क्या कहता है, where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 500 lakh rupees with imprisonment for a term which may extend up to 5 years and with fine. तो अब आपको समझ आ रहा होगा सर कि जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑफेंस की. तो जो चारों में टोटल मिला के भी अगर आपका ऑफेंस 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. और ये वो अरेस्ट होता है जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है. क्लॉज नंबर 1 का ऑफेंस है, इसमें आपको बेल डायरेक्टली नहीं मिल सकती है, इसीलिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होनी मस्ट होती है. दूसरा क्लॉज जो है उसमें भी अरेस्ट हो सकती है, लेकिन उसमें अरेस्ट बेलेबल होती है. यहाँ where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 200 lakh rupees but does not exceed 500 lakh rupees with imprisonment for a term which may extend up to 3 years and with a fine. So यहाँ पे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पे भी अरेस्ट का प्रोविजन है. तो एक कॉमन पार्लेंस में जब हमारी डिस्कशन होती है तो हम हमेशा बात करते हैं कि भैया 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो केस होता है वही लायबल है अरेस्ट के लिए. तो ऐसा नहीं है. अरेस्ट जो है वो आपको 2 साल के 2 करोड़ रुपए की वैल्यू पे भी हो सकती है, बट क्योंकि वो बेलेबल होती है इसलिए हम उसको थोड़ा कम तवज्जो देते हैं. तो ये 4.132(1) के हैं जिनके ऑफेंस ही आपको जेल ले जा सकते हैं, और उसमें भी अगर वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा की है तो वो नॉन बेलेबल होता है, और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच की वैल्यू है तो बेलेबल ऑफेंस होता है. अब नेक्स्ट, ये तो हो गया 132(1) का सिचुएशन. दूसरा आपने ध्यान दिया होगा, इसमें दूसरा जो क्लॉज है वो बात करता है 132(2) की. 132(2) क्या है? रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है. जो लोग बार बार ये काम करते हैं उनके लिए 132 है. वहां पे फिर लिमिट खत्म हो जाती है. तो क्या कहता है, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, then he shall be punishable for the second and for every subsequent offense
with imprisonment for a term which may extend up to 5 years and with fine. तो अगर आप 132(2) में आ गए, मतलब आप रिपीट ऑफेंडर हो गए, तो फिर आपके लिए हमेशा वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस ही हो जाएगा। तो 132(1) एंड देन 132(2) ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है 69 के प्रोविजंस को एक्टिवेट करने के लिए। पावर टू रिलीज एन अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल, तो ये हम इसको लिंक करते हैं जो अभी हमने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की बात की थी। तो यहाँ कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी 1973 where a person is arrested for any offense specified under subsection 4 of 132, he shall be admitted to bail or in default of bail forwarded to the custody of the magistrate. In the case of a non-cognizable and bailable offense, the deputy commissioner or the assistant commissioner shall, for the purposes of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer in charge of a पुलिस स्टेशन। तो इस केस में ये जो बेलेबल ऑफेंस होता है जो 132(4) में दिया हुआ है, 132(4) में क्या कहता है, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, all offences under this act except the offences referred to in subsection 5 shall be non-cognizable and bailable। तो वो साफ कहता है कि ये सिर्फ 139(5) में जो आपके ऑफेंसेस हैं वही नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होते हैं, उसके अलावा जो भी होंगे वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो 139(5) में हमने बात की है सिर्फ उन सिचुएशंस की जो 132(1) के 4 क्लॉजेस में फॉल करती हैं और फर्स्ट क्लॉज में पनिशेबल है, या फिर 132(2) में पनिशेबल है, मतलब रिपीट ऑफेंडर है। उसके अलावा जितनी भी सिचुएशंस हैं वो सारी बेलेबल होती हैं, इसलिए वो ऑफिसर इंचार्ज ही आपको बेल दे सकता है। तो इसीलिए 2 करोड़ वाली बात को कोई ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट 5 करोड़ से बियॉन्ड क्योंकि नॉन बेलेबल हो जाता है, इसलिए जनरल पार्लेंस में हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हम इसको नॉन बेलेबल तब बोलते हैं जब 5 करोड़ रुपए की वैल्यू हो जाती है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी शेयर करना चाह रहा हूं कि जो ये चारों ऑफेंसेस हैं, चारों ही आपने ऑफेंस कर रखे हैं, तो जो वैल्यू टोटल हो जाएगी, तो हो सकता है आपने क्लॉज में 1 करोड़ का ऑफेंस कर रखा हो, बी क्लॉज में 50 लाख का कर रखा हो, सी में फिर 1 करोड़ का कर रखा हो और डी में 3 करोड़ का कर रखा हो, तो आप 5 करोड़ रुपए से ऊपर वाली कैटेगरी में ही आ जाएंगे। सेक्शन 70 और 71 में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा सर, ये जैसा हमने पहले भी बात की थी, थोड़े प्रोसीजरल सेक्शन है। पावर टू समन पर्सन एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, तो ऑफिसर के पास पावर होती है कि किसी भी केस से रिलेटेड बंदा जिसमें उसको डाउट है कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको वो एविडेंस देने के लिए समन कर सकता है और उसमें जो प्रोसीडिंग्स मानी जाती हैं, यही सेक्शन 70 का प्रोविजन है। फिर उसके बाद में 71 है एक्सेस टू प्रेमिसेस के बारे में, कहता है द प्रॉपर by an officer not below the rank of JC may access any business premises to inspect। तो ये डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन होती है जिसको एक्सेस करने के लिए जेसी लेवल का ऑफिसर ऑथराइज कर सकता है अपने किसी भी असिस्टेंट को, और पर्पस उसका क्या होगा, कोई ऑडिट हो सकती है, स्क्रूटनी हो सकती है, वेरिफिकेशन टू सेफगार्ड एनी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। और इसके बाद आखिरी सेक्शन जो है वो सेक्शन 72 है, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर्स। ये एक स्पेशल पावर्स प्रोविजन है कि अगर आपके जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स किसी भी केस में कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो इंस्पेक्शन की हो, सर्च हो, सीजर हो, तो उनको ये वाले डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। तो ऑफिसर्स ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। पुलिस के हों, रेलवेज के हों, कस्टम्स के हों, ऑफिसर्स एंगेज्ड इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू हो, विलेज ऑफिसर्स हो, और या फिर दूसरे स्टेट और यूटी के टैक्स ऑफिसर्स होंगे, ये सब इनको असिस्ट करेंगे। तो द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एंड रिक्वायर एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय द कमिश्नर। तो इसके अलावा भी अगर किसी ऑफिसर को चाहे तो कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है कि उनको जीएसटी ऑफिसर्स को असिस्ट करना होगा। तो ये सर मोटे मोटे सेक्शंस हैं।
मैं 139(1) में जो अभी हमने बात की थी INS 01, 02, 03, 04, ये फॉर्म्स मैंने यहाँ पे चिपका दिए हैं। इसकी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, बट आज क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट इन केस वी हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन टॉक अबाउट दिस। और इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। बाकी ये पीपीटी मैं शेयर कर लूंगा, तो इसको आप आगे रिव्यू कर सकते हैं, और फर्दर अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हो तो भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। So thank you very much, sir, and we can, with your permission, start some question answers if required. Yes, sir. Yes, sir. Sir, वो already in chat box. You read one by one and reply, sir. Goel साहब. Sir. So, some questions are already in chat box. You read one by one and reply, sir. Yes, sir. ओके, सो मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ के साथ साथ कोशिश करता हूं सर डिस्कस करने की। पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है, हाउ टू करेक्ट रॉन्ग टैक्स पेड इन GSTR 3B। GSTR 3B में अगर आपने टैक्स को गलत पे कर दिया है, उसको कैसे करेक्ट करेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है सर, इसमें काफी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आंसर करने की। जनरल लॉ यही है कि अगर 3B में किसी भी टाइप की गलती है तो आप उसको सब्सिक्वेंटली, जब भी वो गलती आप रियलाइज करते हैं, सब्सिक्वेंट मंथ के रिटर्न्स में करेक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एरर है, उस टाइप का उसका सोल्यूशन हो सकता है। अगले कुछ कमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने, वी आर हियर ऑन द टॉपिक, प्लीज कंटिन्यू विद द वेबिनार। ये सब बातें हो गई सर, प्लीज डोंट स्टॉप द वेबिनार, हो गया। प्लीज ड्वेल अपॉन द टॉपिक, ओके हो गया। व्हाट अबाउट 9, ये टाइमिंग की बात होगी। प्रोसीड एज पर वेबिनार टॉपिक, ओके। हाँ जी, 414 अजय, प्लीज डिस्कस कूपन सेल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कूपन वेयर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइड। हाँ जी, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ सर। प्लीज डिस्कस कूपन सेल्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कूपन वेयर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। सर मैं इस क्वेश्चन को ना फॉर द टाइमिंग पार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है सर। इसमें ना अगर टाइम मिलेगा तो हम दूसरी चीजों पे इस पे बात करेंगे जरूर सर। ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं एनी प्रेमिसेस ऑफ असेसी और ऑफ एनी वन। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी भी प्रेमिसेस पे इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर हो सकता है या किसी एक प्रेमिसेस पे हो सकता है। सर ऑब्वियसली किसी भी प्रेमिसेस पे सारे प्रेमिसेस एक साथ भी सर्च हो सकते हैं। जनरली इंस्पेक्शन आपके बिजनेस प्लेस पे ही होता है, लेकिन सर्च और सीजर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इंक्लूडिंग द रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। सर्च के केस में 67(2) के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें कोई भी प्रेमिसेस यूज हो सकती है। How they can replace the word magistrate with the word commissioner? Are they not amending CRPC Act? Sir, I am not competent to answer this question. I think maybe a criminal lawyer can answer this better. So according to me, what they have done is, in certain cases, they have given vested powers to the GST officers, which are in the nature equivalent to the powers given to magistrates. So next question is, collects what if money not received from debtor? So ये क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपने इनवॉइस रेज कर दिया है, मैंने 100 करोड़ की सेल कर ली। हाँ जी, बिल्कुल मेरे को समझ आ गया सर। इनका मतलब ये है कि मैंने सेल किया है। जी सर, जी सर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आपने इनवॉइस रेज कर दिया लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट का पैसा भी ऑब्वियसली आपने कलेक्ट नहीं किया है, तो क्या सिर्फ मेरी अमाउंट जो ड्यू हो गई है उसको भी कलेक्टेड बट नॉट पेड मान लिया जाएगा? नो, अकॉर्डिंग टू मी नो। आपका कलेक्टेड बट नॉट पेड उसी सिचुएशन में होता है जब आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे ले लिए हैं, अपने पास रिसीव कर लिए हैं और जमा नहीं कराए हैं, तभी आप इस पनिशमेंट के लिए लायबल हो सकते हैं।
Next question is, sir, whether the limit of 5 crores or 2 crores is applicable for one financial year? No, sir. इसकी कोई फाइनेंशियल ईयर से रेलेवेंस नहीं है. एक पर्टिकुलर डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इवेजन अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो वो 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है. और लाइकवाइज 5 करोड़ की जो लिमिट है, इट हैज नथिंग टू डू विद वन फाइनेंशियल ईयर. दैट इज एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग, वो किसी भी साल से पर्टेन कर सकती है. क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग. जी सर, ये 3 महीने का जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यू डेट है उसके बाद कम से कम 3 महीने बीत जाएं तभी वो अमाउंट कैलकुलेट होती है इस वैल्यू में. ओके, ग्रेट डेलिब्रेशन सर, थैंक यू वेरी मच. इसके बाद if some amount is escaped in calculation for whole year, so मैं इसका मतलब ये समझ रहा हूं कि आपने सेल किया, पैसा कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन अपनी 3B में आप अकाउंट 4 करना भूल गए, आपने टैक्स गलती से कम जमा कराया. और ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था कि एक बड़ा क्लाइंट था जो कार डीलर है और उसने 1 महीने की कार की सेल्स जिस पे 28% का टैक्स लगता है, तो करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टैक्स जो है वो जमा ही नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर जब हम एक्सेल में शीट बना रहे थे तो एक पर्टिकुलर शोरूम जो है हमसे हाइड हो गया, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू ही नहीं आई, तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स हमने कम जमा कराया उस केस में. तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो क्या लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? सर, लॉ के हिसाब से तो लायबिलिटी अगर कलेक्टेड है और जमा नहीं हुआ तो आएगी, बट यस, इंटेंशन अगर आपकी प्योर है तो अगर आप बहुत सारे केस लॉज भी देखेंगे तो वहां ये भी होता है कि जिस दिन आपके पास ऑफिसर आए, अगर आपने ऑन द स्पॉट भी पैसा जमा कर दिया तो भी वो अरेस्ट तक नौबत नहीं पहुंचती है. अगर आप एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि इतने दिनों में हम ये टैक्स जमा कर देंगे तो भी जनरली अरेस्ट तक की नौबत नहीं आती. बट यस, टेक्निकली अगर आपने पैसा कलेक्ट करके जमा नहीं किया है, उसका रीजन एक कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है, बट देन यू हैव टू प्रूव योर इंटेंशंस. कि हमारे केस में ही मैं एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था. तो मान लीजिए 2 करोड़ 70 लाख हमने कम जमा कराए, लेकिन हमारे पास 10 करोड़ का इनपुट पड़ा हुआ था. Naturally we have a convincing reason to tell to the officer that there was no intention to evade because we already have so much of input tax credit. So उस केस में you have a very valid ground to avoid such a situation. But otherwise merely on the ground कि ये calculation mistake था, बचा पाना मुश्किल है unless आप ये prove कर दें कि आपकी कोई malefied intention नहीं थी. Sir, instead of IGST, CGST and SGST has been paid in, sorry, CGST and SGST has been paid in 3B. How to correct that in next month's 3B? Sir, इसका correction possible नहीं है. ये तो लॉ में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने IGST गलती से पे कर दिया और आपको CG और SG पे करना चाहिए था, तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि आपको IGST का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा और CGST और SGST जो आपने नहीं पे किया वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा. सर, मेरे पास ये लिस्ट यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके बाद कुछ और तो नहीं है सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है सर, ना किसी ने कोई हैंड भी रेज किया. ऑल आर सेटिस्फाइड सर. सर, अब कूपन पे आ जाते हैं. जी सर, बिल्कुल, अब कूपन पे आ जाते हैं. तो मैं जरा 1 मिनट के लिए आपका क्वेश्चन भी दोबारा निकाल लेता हूँ. 414, यस सर. Please discuss coupon sales and treatment of profit on sale of coupon where supply is not identifiable. तो सर, इसके बारे में मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पे वो टाइम ऑफ सप्लाई को लेके इसको डिस्कस करता है कि सेल ऑफ कूपन अगर होते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंटली उसकी टाइम ऑफ सप्लाई और एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा. तो इसमें 2 सिचुएशंस दी हुई हैं. पहला तो ये कि अगर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कूपन ये आइडेंटिफाइड है कि प्रोडक्ट आप उससे क्या रिम्बर्स कराएंगे या कौन सा प्रोडक्ट उस कूपन के थ्रू आप परचेज करेंगे, अगर ये आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ सेल ओनली, तो उस सिचुएशन में आपको जो उसी दिन की एप्लीकेबल रेट है और जो उसी दिन आपके ऊपर टैक्स मतलब IG या CG SG डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो लगेगा वो आपको पे करना है. पहली सिचुएशन जब आइडेंटिफाइड है ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू आर इशूइंग द कूपन.
और दूसरी सिचुएशन है जहां पे कूपन आपका आज इशू हो रहा है, लेकिन रिडीम जब होगा तो ये पता चलेगा कि उससे आप क्या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने वाले हैं, तो उस केस में उसकी टाइम ऑफ सप्लाई डेफर हो जाती है, और जब उस कूपन का रिडम्पशन होता है उस टाइम पे जाके जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो सर इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? आई डोंट थिंक सो। अजय जी कुछ बता दीजिए, आपका क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और आए हैं चैट बॉक्स में। सर अजय जी से क्लैरिफिकेशन ले लो ना इसके ऊपर। जी सर। तब तक हम ये नीचे चैट बॉक्स में जो 2 क्वेश्चन आए सर इस पे भी बात कर लेते हैं। यस सर, यस सर। तो ये अखिलेश जी ने लिखा है, रीजंस टू बिलीव मींस आर दे रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस एंड क्वांटिटी। सी, रीजंस टू बिलीव इन राइटिंग होना जीएसटी एक्ट में एज सच कहीं नहीं लिखा हुआ। जीएसटी एक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे फाइल पे नोटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स में ये भी बात कही गई है कि अगर रीजंस को कहीं कम्युनिकेट नहीं किया गया है इंटरनली, ऑल्दो रीजंस टू बिलीव को एसएससी को कम्युनिकेट करने के बारे में कहीं बात नहीं है, लेकिन सब्सटैंशियली देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंसेस हैं जहां पे ये कहा गया है कि रीजंस टू बिलीव रिकॉर्डेड होने चाहिए डिपार्टमेंट की अपनी फाइल्स में, और कोर्ट के मांगे जाने पर उनको बताया भी जाना चाहिए कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये इंस्पेक्शन हुआ है, और वो ऑफिसर को वहां पे प्रूव करना होगा। बट एसएससी डज नॉट हैव द राइट टू आस्क कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंस्पेक्शन या सर्च सीजर हुआ है। Next question is, sir, if tax was paid in 3B for a particular invoice of financial year 18-19, but that invoice was not included in GSTR1, okay, up to 30th September 2019, then what is the option left to for the supplier, as the purchaser is hard pressing for bill to be uploaded, for which there is no option? यस सर, इसका मेरे को भी कोई ऑप्शन नहीं पता। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि आपने टैक्स जमा करा दिया, कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि आपने B2B के इनवॉइस को B2C में डाल दिया, और कुछ केसेस में आपने ऑल टू ऑल उसको मिस कर दिया, इनवॉइस GSTR1 में नहीं गया, लेकिन आपने ड्यू टैक्स उसका जमा कराया हुआ है। तो हमने तो सिर्फ अभी तक यही एक अप्रोच लगाई है कि आप एक अंडरटेकिंग अपने क्लाइंट को दीजिए, और प्लस वही अंडरटेकिंग आप अपने असेसिंग ऑफिसर को और क्लाइंट के असेसिंग ऑफिसर को भी दीजिए कि ये हमसे मिस्टेक हो गई है, GSTR1 में ये इनवॉइस मिस हो गया है, और आज की डेट में हमारे पास इसको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट ये ड्यू टैक्स हमने इसका जमा करा दिया है। इससे ज्यादा सर मेरे ख्याल से इसका कोई प्रैक्टिकल आंसर मुझे भी नहीं मिला। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के केस में हमारे को भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, और ह्यूज क्रेडिट्स हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हमने गलती कर दी कि टाइम से उनको हमने अपनी GSTR1 में नहीं डाला। तो इससे ज्यादा कोई और आंसर मेरे पास इसका नहीं है सर। प्रैक्टिकली आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि एक अंडरटेकिंग अपने एसएससी को भी दे सकते हो, क्लाइंट को, और वही अंडरटेकिंग आप डिपार्टमेंट में भी सबमिट कर सकते हो, जिससे आपका ओनस प्रूव हो जाता है कि आपने करेक्ट इंटेंशन के साथ किया है, बट कोई स्कोप अवेलेबल नहीं है इसको ठीक करने का। अजय जी का सर आ गया है, उसमें रिप्लाई आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं सर, उससे पहले एक वर्ड और लिखा हुआ है, मैं उसको जरा और देख लूं। ये कह रहे हैं प्लीज एलैबोरेट द वर्ड सप्रेस। तो सप्रेशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है सर वो यही होता है कि जो वैल्यू है उसको आपने कम कर दिया है, कम कर दिया। अच्छा, सप्रेशन इज ऑलवेज रिड्यूसिंग द वैल्यू, मे बी बाय एनी मींस। आप एक प्रोडक्ट की वैल्यू 300 रुपए की बजाय 30 रुपए कर दें या 150 रुपए कर दें, वो भी सप्रेशन है। आप 100 आइटम्स की बजाय उनकी क्वांटिटी 80 कर दें, वो भी सप्रेशन है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन के साथ वैल्यू को कम कर दें, वो भी सप्रेशन है। सो बेसिकली सप्रेशन मींस जानबूझ के किसी भी चीज को छुपाना या कम करना जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए और रेवेन्यू का नुकसान हो, यही सप्रेशन है सर। अब मैं अजय जी का पॉइंट पढ़ता हूं। ये कह रहे हैं यस, वन पर्सन इज डूइंग ट्रेडिंग ऑफ दीज कूपन्स, as I suppose these coupons are not taxable, but
what about tax on profit earned on trading of these coupons? Please, if possible, unmute my speaker. तो सर अजय जी का कर दिया मैंने, लेकिन अजय नाम के 2-3 हैं। अच्छा, मैंने दोनों को तो कर दिया है, 2 को देखें कौन सा अजय जी है। जी सर। अजय जी, नाउ यू मे स्पीक सर। यू अनम्यूटेड अजय जी, स्पीक सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी सर। अजय जी बोलिए। सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बोलो आगे, सर, आगे। बोलो। जी अजय सर बोलें। सर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रहा है। अजय जी नहीं, उन्होंने म्यूट कर दिया अपने आप को। चैट में कर लो सर। हाँ सर, चैट में कर लो। ओके, तो सर ये जो अजय सर ने लिखा है ना, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बात करे बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वन पर्सन इज डूइंग ट्रेडिंग ऑफ दीज कूपन्स एज आई सपोज दीज कूपन्स आर नॉट टैक्सेबल। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कूपन्स टैक्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कूपन से जो सर्विस या गुड्स रिडीम होने वाली हैं वो टैक्सेबल है, तो ये कूपन ही टैक्सेबल होंगे। तो जब तक हम थोड़ा सा इनकी हेलो ट्रांजेक्शन। सर, आ रही है आवाज? हाँ जी सर, बोलिए अजय जी, सर, हाँ बोलिए। जी आ रही है सर आवाज? आ रही है सर। सर ऐसा ये सर ये दीज आर थर्ड पार्टी कूपन। हाँ, दीज आर थर्ड कूपन। उनको डिस्काउंट में मिलते हैं। सपोज 1000 रुपीज की वैल्यू है, दे गॉट इन 950 रुपीज जी। and they again pass on in 1000 rupees. They don't encash any coupon. They just take from one party and supply to other party. ओके ओके ओके, तो ये मैं जहां तक मैं अब समझाऊं सर, ये बेसिकली जैसे टेलीफोन के रिचार्ज कूपन होते हैं उस टाइप की कूपन्स की बात कर रहे हैं सर। हाँ, पर इनमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है। ओके, सप्लाई क्या है ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो बेसिकली आप एक कूपन लेते हैं जो कि 950 रुपए का आता है, जिसकी मान लीजिए फेस वैल्यू 1000 रुपए की है, तो आप उसको 1000 रुपए में आगे बेच देते हैं। आपके लिए वो ट्रेडिंग ऑफ कूपन्स है, और उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वहां पे टैक्स लायबिलिटी की बात हो रही है, राइट सर? करेक्ट सर करेक्ट सर। जी नहीं, ठीक कह रहे हैं सर। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं कोशिश करता हूं सर, जितना मुझे ऑन द स्पॉट आंसर समझ में आया है। आपका क्वेश्चन है कि कूपन खरीदा, उस कूपन से क्या रिडीम होगा, उससे क्या मिलेगा, ये आइडेंटिफाइड नहीं है। ये सर्विस हमें आज की डेट में नहीं पता कि क्या रेट पे टैक्सेबल होगी। तो पहली बात तो सर मेरा इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि ये कहना कि ये कूपन टैक्सेबल नहीं होगा, यही मेरे ख्याल से मैं इस बात पे अग्री नहीं करता। हालांकि मैं 100% श्योर भी नहीं हूं कि आपकी बात गलत है, बट मुझे लगता है कि कूपन अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी आइटम जिसका रिडम्पशन का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उस पे स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 18% चार्ज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपना इस बात पे कमेंट रिजर्व करता हूं कि ये आपने कहा कि टैक्सेबल नहीं होगा, हमें सिर्फ प्रॉफिट पे बात करनी है, तो मेरे ख्याल से इसको री एग्जामिन करना चाहिए कि कूपन पे टैक्स लगेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आप रिप्लाई करो सर, आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ, तो सर हम एक काम करेंगे ऑफलाइन भी, राजेश जी अगर मेरा नंबर भी दे दीजिएगा अजय जी को, तो हम एक बार बात कर लेंगे। ओके, है ना? तो मेरा ब्रीफ आंसर ये है सर कि मैं इस बात पे पूरी तरह श्योर नहीं हूं कि ये टैक्स नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से इस पे टैक्स लगना चाहिए, और अगर ये 950 का परचेज होके 1000 रुपीज का सेल हो रहा है, तो नेचुरली इस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पे ऑटोमेटिकली टैक्स आपकी जेब से चला जाएगा। ये मेरा अपना व्यू है। बाकी जब हम 1 to 1 बात करेंगे अजय जी, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेंगे इसको, शायद हम कोई इसका आंसर निकाल पाए। ठीक ठीक ठीक। थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, एंड ओवर टू राजीव कोहली जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स सर। Manoj ji, thank you for a very nice presentation with the section 67 to section 72. So those are our
this inspection and rules 138 to 142, and the differences between inspection versus seizure, and for offences which are under one section 132, and very good deliberation on various questions which are raised, and we had lots of clarification on that. Thank you very much, sir, for this nice deliberation. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Jagmeet sir. जी. Thank you, गुरुजी. हमारे दमीजा साहब. दमीजा. Oh, हेमंत पावा जी, always late, sir. क्या बात है? After 5 आते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सर. पावा जी, वेट करना. अशोक भरतिया जी को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. जगजीत जी को भी अनम्यूट कर देता हूँ. हेमंत पावा जी भी. पावा जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको. हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है भाई साहब? बस ठीक ठाक सर, आज लेट हो गया मैं। आज नहीं, आप हमेशा आते हो लेट भाई साहब, मैं आपको नोट करता रहता हूँ. यू जॉइन अस आफ्टर 5. दो तीन दिन से हो रहा है ये ऐसा। सर मैं नोट करता रहता हूँ कौन कब आ रहा है, कौन एब्सेंट भी है। आगे कब से ध्यान रखेंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है। सर 4 बजे का तो ध्यान रहता है जी. तो जैसे 9 बज गए ना यहाँ पर, हमारे स्पीकर साहब तो 5 मिनट पहले आ जाते हैं. जगजीत जी आ जाते हैं, कोहली साहब आ जाते हैं, दमीजा जी आ जाते हैं, फिर आप भी आया करो ना सर. ठीक है। कल का सर हमने 15 CA CB रखा है. कल का 15 CA CB लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है कि इसको सर आप रिपीट कराइएगा. रिपीट क्या, ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाया, तो ट्राई करते हैं एक बार फिर. आज अटेंडेंस काफी लो रही है. मनोज जी, सॉरी फॉर दैट. सर ठीक है, चलो आप लोगों का प्यार मिलता रहे सर, इतना बहुत है. सर ऑलवेज सर. Thank you, Manoj ji. थैंक यू सर. ठीक है सर. थैंक यू सर.